क्या अब भी वहां सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं? क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलारा करते हैं? ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो, या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो? क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर की छत पे ठहरी होती हो? है वादी शहजादी, अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है। आती जाती हर एक सांस ये कहती है, एक दिन तुमसे मिलने वापस आऊंगा। क्या है दिल में, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं, वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं। मैं भी पंडित, मैं भी कश्मीरी, वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं. That's a story, that's an emotion, that's a thought, that's a feeling that more than 4 lakh people have been carrying with them for more than 30 years now. 30 years, 3 decades, 1 whole generation, 2 generations gone by. A story that should have been told day after day, night after night, so that none of India forgets it. But a story which now is a small speck of memory, and perhaps half the country's population doesn't even know what happened on the 18th, 19th and the 20th of January 1990. One gentleman who's seen that, who's lived through that, along with a few others, decided to tell this story very quietly. But today, we're going to make some noise. We're going to make India hear the story from the people who have borne this, who are living this, and who are still looking to the valley, looking beyond the horizon at that home which is just a few hundred kilometers away. But it's been 3 decades that they've seen it. That's the reality. Vidhu Vinod Chopra, Rahul Pandita with us on the story of the Shikara. You long to get back onto that Shikara? Let me ask you this. Where did this come from? I want to compliment you because I didn't know कि ये जो अपने तस्वीरें दिखाई इसमें मेरे बचपन की तस्वीरें थी, वो मैं था बचपन में। तो उस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बहुत मुझे बचपन की याद आई देख के, बहुत याद आई, बहुत। मैंने असल में मुझे मालूम नहीं था कि आप ये तस्वीरें चलाने वाले हैं। So it was such a pleasant surprise and actually took me back to my childhood and I was very moved. Thank you. My home, my house was shown. Yes, you've done well. No, it's only begun. It's only begun because this is very special, ladies and gentlemen, because today we have a few people, Kashmiri Pandits, with us in the studio. It's a very handful. It's a very small number. It's only not even 1% of the total group which has a story to tell. Many of you watching this broadcast have a story to tell. But I just want to understand from you, Rahul and Mr. Vidhu Vinod Chopra, how long was this process? See, it's the film as you might know, since you've also seen the film. You're one of the rare people in India who've seen the film. And I couldn't get up. Yeah. I didn't get up. इन्होंने पूरी फिल्म देखी है और किसी ने देखी नहीं, इन्होंने देखी। ये शायद पहले इंसान है। मैं चाहता हूँ सबको कहानी बता दूं, अभी नहीं बताना भाई। पर मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज जब तक आप उसे देखोगे नहीं आप समझोगे नहीं। आज तो बस वो कहते हैं ना एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो it's a tribute to my mother and to my mother who came in 2007 she passed away. तो वो बम्बई आई थी, परिंदा मैंने फिल्म बनाई थी उसके प्रीमियर के लिए 1989 एंड वो आई 3-4 दिन के लिए।
तो उन दिनों हम लोग गरीब थे, तो माँ को मैंने कहा आजाद नहीं बड़े पैसे लगे, मैंने कहा मैं एयर टिकट भेजता हूँ। तो मैंने एयर टिकट भेजी, तो बेचारी एयर टिकट के हिसाब से छोटा ही सूटकेस लेके आई, और फिर वो आई थी 1 हफ्ते के लिए और 10 साल वापस नहीं जा सकी। शी जस्ट कुडंट गो बैक। 10 साल वापस 10 साल नहीं, वो 10 साल गई भी जब मैं मिशन कश्मीर बनाने गया, हाँ, तो मेरे पास सिक्योरिटी थी, तो मैं माँ को लेके गया, तब उन्होंने घर अपना वापस देखा। एक्चुअली वी हैव ए स्मॉल फिल्म व्हिच आई होप यू शो। या वी विल तो वो उससे मैं इंस्पायर हुआ, मैंने माँ को कहा कि मैं बनाऊंगा, तो माँ ने कहा कि यार तू ऐसी फिल्में बनाता रहना, साढ़े ते बना। सो आई स्टार्टेड राइटिंग इन 2008, so it took me approximately 11 years to, because and then along the way मैं लिखता गया, फिर राहुल joined me, फिर अभिजात जोशी came in finally। तो बहुत ज्यादा हमने, क्योंकि ये फिल्म को 11 साल लगने के 2-4 कारण थे कि इट्स नॉट लाइक अदर फिल्म्स आर मेड, इट्स यू नो एज गुड एज दोज फिल्म्स आर। इसमें मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि मैं ये चाहता कहता था कि जब ये कहानी आए तो ये जो 4 लाख लोग जिनमें से कुछ यहां पे हैं इस वक्त, इनकी कहानी पूरा हिंदुस्तान भारत सुने, क्योंकि इनकी हमारी कहानी बिल्कुल अनकही है, अनसुनी है। नो ट्रू। मैं राहुल, व्हेन डिड यू जॉइन द प्रोजेक्ट? आप कब जुड़े? और मैं आई एम वेरी क्यूरियस टू, ये वादी शहजादी किसने लिखी? ये इरशाद कामिल ने। इरशाद कामिल ने लिखी, लेकिन इरशाद भाई को आपने कहीं से तो समझाया होगा ये जज्बा, ये जो इमोशन निकल के आया है। सी, इरशाद बहुत बहुत गजब का शायर है, हाँ, और उसने इतनी पोम्स लिखी हैं इस फिल्म के ऊपर कि वो अब एक किताब छाप सकता है, क्योंकि मैंने कम से कम, अगर वो 50 लिखता था तो 45 रिजेक्ट हो जाती थी। और उसकी एक गजब की फॉर्म है, जो उसने गजब की फॉर्म लिखी है जो फिल्म में नहीं है। हाँ। तो ये इरशाद ने लिखी है, और फिल्म तो आपने देखी है, तो आप फिल्म तो देखी, और जहां पे ये आया वहां मेरे आंसू निकल गए। दैट वाज द इमोशन दैट इवन व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी एंड फॉर समबडी, how strongly do you feel about this? Like Vinod said, it's a story of all of us. You know, we left. How old were you? I was 14. You were 14. Yes, and my So family it was quite cognizant in your mind. Yeah, absolutely. I have a very vivid memory of those days, and even 30 years later, it sometimes amazes me how much I dream about that home, and with what exactitude. What is home for you in Kashmir? Where were you from? I'm from. Where are Srinagar. you from? I'm from Srinagar city. From Srinagar Yeah, city. that's the only place which I call home. Huh. In the last 30 years, I've changed more than 20 accommodations across cities, including many times in Delhi. But When did they you go? will always. Did you ever remain go a back? house. Did you ever? I go back because of professional reasons every 2-3 months. So did you go back to your house? I went back once in 2007, and I regretted that decision because in my head there was a certain clarity about how that house was. And the house is completely different with the new occupants of the house. I spent about half Are an hour. they 40 minutes. legal, legitimate occupants to whom you sold the house? Yeah, they are. They are. Or was it squatted upon and occupied? It was not squatted upon. कईयों के घर ऐसे हैं ना कि उन्होंने बेचे तो नहीं, कोई और आके रहने लग गया वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। पर वो घर बदल गए बिल्कुल, जैसा फिल्म आपने देखी है, जब बदल गए, वो घर ही नहीं है। और ये कहानी राहुल की है, मेरी, इन सब की यही कहानी है। अगर आप सबको पूछें कि आपका घर कहाँ है, तो मुझे पता है कि डेजी का घर अच्छावल में है, क्योंकि इसने कहा है। उनका घर पुलवामा में है। कुछ लोग, मतलब इनके सब, एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई थी, तो उसमें सब इनके घरों के एड्रेसेस हैं। उनसे भी बात करेंगे, अभी हम सब जाते हैं वहां पर, लेकिन राहुल आप बताइए, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, व्हाई 2007 when you went back, what happened? I was working on my book at that point in time, and for the sake of that book, I just wanted to understand what has happened to my house. And in those days, my mother was really unwell, and I was acutely aware of the fact that I have very short time. She was really unwell. She passed away in April last year. I wanted to go and click some pictures there, so that because my parents had never been back to Kashmir after 4th April 1990. That's the day when we left. It's etched in my memory that day. So I just wanted to go back and click some pictures. I had taken a camera along, and a couple of friends, journalist friends, had gone there. And when I went there, I immediately regretted that decision. I came back, I showed them some pictures, but it was a very painful experience. When you went back, what were you met with?
Were you met with friendship? Were you met with hostility? Did you see any of your old friends? Did they greet you like they did when you were 14 years old, or was it? See, I go back there very often, and I know you still have friends. and there. I meet friends. With my Muslim friends there's a agreement. It's a silent agreement that we don't talk about 1990. We talk about current times. We talk about other things. We have a lot of things in common. You know, there's a commonality of language, for example. In Delhi, for example, I hardly get to speak in Kashmiri. I meet my father maybe twice a day, and I'll speak to him a few lines here and there. But it is only in Kashmir when I go back, it's as if a spring of language opens up, and I'm surprised sometimes how much I remember of that language. Teach me some Kashmiri. How do you say hello and welcome in Kashmiri? Namaskar, value you. Say it. I want to learn it. So because you know you said commonality of language. Right. Before the show started, I'm being very candid here. I just said, let's say, how can I say hello and welcome? You know the 2-3 first responses that came. जो पहले 2-3 responses मुझे मिले online जब मैंने search किया, तो वो था नमस्कार, खुशामदीद. मैंने कहा खुशामदीद कश्मीरी कैसे हो गई? खुशामदीद is not Kashmiri. Then they said Khair Maktoum. So Khair Maktoum was When you welcome someone. Yeah, welcome someone. So I was given as one of the options. But the Kashmiri, in terms of the Sharda Lipi and what should be said, is what you said right now, came as a subsequent search. Right. That itself is a statement of a lot of things as to what is being lost as far as Kashmir is concerned. Our friends say adab. Haan. Gently we say namaskar to each Haan. other, to elders especially. you Correct. know, So But the core Kashmiri response जो जैसे Kashmiri as a language था, जैसे आप दोनों ने स्टार्ट किया, वो तो मेरे को नहीं देखा. कहीं आपको लग रहा है वो गायब हो रहा है? सी कश्मीरी आप जब कहते हैं तो वो लाइन जब कश्मीर में शूट कर रहा था तो मेरा काफी क्रू मुसलमान था, तो उनके साथ तो मैं सलाम अलैकुम नहीं करता हूँ, वो भी वालेकुम सलाम, वो भी कश्मीरी है. हाँ. नमस्कार मारा भी कश्मीरी है. द पॉइंट इज कि हम सब कश्मीरी हैं. तो हम सब कश्मीरियों के जो कुछ थोड़ी सी कश्मीरी जो है वो वहां से निकाली गई है, लेकिन हैं हम सब कश्मीरी. वो तो मैं मानता वो हूं. भी उतना कश्मीरी है जितना हमारा कश्मीरी है. जी. हमारा सिर्फ ये दुख है कि हमारा कल्चर जो था, जो फिल्म में भी आपने देखा, जी. हमारा वो कल्चर ही खत्म हो गया. हमारी लैंग्वेज ही सिर्फ फिनिश नहीं हुई है. जब मैं जम्मू में गया इनके पास रिसर्च करने, और मैं बच्चों से बात कर रहा हूं कश्मीरी में, छोटे छोटे बच्चे, वो सब मेरे साथ डोगरी में और पंजाबी में बात कर रहे हैं. मैं उनको पूछ रहा हूं यार नाम क्या छो? मेरा ना जी संजय राणा. और संजय राणा कश्मीरी नहीं आंदी? और ना जी कश्मीरी नहीं आंदी है. तू तो यार कश्मीरी है? ना जी मैं तो हाँ कश्मीरी पर मैंने नहीं आंदी. यू आस्क्ड देम. इट वाज फॉर मी अ शॉक that we have not only lost our, as the film says, we have not lost only our language, our culture, we've lost our heritage, we've lost, it's a loss I cannot even explain to you. And I only hope and pray that through this film, through this effort of 11 years, some of that comes back to life. People realize कि यार ये भी लोग थे. जी बिल्कुल, लोग हैं, थे नहीं, लोग हैं, लोग हैं, लोग हैं, लोग थे नहीं, लोग हैं. चलिए जरा लेट्स जस्ट गो एंड सिट विद देम. उन्हीं से बात करते हैं, उनके साथ बात करते हैं. अलग बैठ के अच्छा नहीं लगता. हाँ बिल्कुल, आइए. तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा विदुन मैं इधर बैठ जाता हूं. बैठे. राहुल आप वहां बैठिए. आप सबको नमस्कार एक बार फिर से. अच्छा, आप लोग सब कितने लोग थे जो 90 के टाइम में थे वहां से? सारे ही थे. कुछ नया जनरेशन भी मुझे दिखा था. तो कौन? अच्छा मैडम आप बताइए, आप कहाँ पे थी, क्या हुआ था उस वक्त? हम कश्मीर में अंतनाग, आराम से माइक आराम से पकड़ के. मेरे मायके वाले अंतनाग में रहते थे. तो हम जब सारे खेलने जा रहे थे तो मेरे एक छोटे अंकल थे, वो खेलने गए तो वहां से वो आए, बोले मेरे पापा को चलो यहाँ से, मैंने सुना कि जो 18 और 25 के बीच में उन सबको मारेंगे, हम भाग जाएंगे. उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं भागेंगे. उसके बाद फिर से शाम को जब हम निकले तो वहां से शोरों की आवाज आ रही थी, यहाँ से काफिरों भाग जाओ कुछ. तो उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ ऐसे बातें आ गई कि आंखें हमने टेंटों में खोल दी. आप लोग कितने लोग थे जब एक साथ आपके परिवार में? हमारी फैमिली में मेरे पापा थे, मम्मी थे, दादी थे, अंकल थे, आंटी थी, और उसमें एक आंटी थी जो प्रेग्नेंट उस टाइम थी, वो हमारे साथ थी. तो
आपको किसी ने मदद की वहां पर? कैसे आप वहां से बच के निकल के आए उस दिन रात को? हम रात को निकल गए करीबन 1 बजे रात को। ये कभी जनवरी 19 तारीख 18-19 की बात थी? हाँ, ये मार्च की बात है। मार्च की बात है। तो हाँ, जनवरी के बाद से राहुल आप कह रहे थे आप अप्रैल में आए, आप अप्रैल में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने ये चलता रहा वहाँ? चलता रहा। हाँ, उनसे मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आई कम टू यू। हाँ जी। हमारे टाइम तो हम तब तो शबीर शाह की हालत थी, तो हमारे आंगन में स्कूटर 2 थे। हाँ। इतना हुजूम आया हमारे घर, हम छोटे छोटे बच्चों को तीसरे चौथे मंजिल में छुपा के रखा था। औरतें भी थी, वो भी, उनको भी हमने छुपा के रखा। लड़कियां थी हमारे घर में, 2-4 लड़कियां थी। तो उन्होंने बोला और इन लड़कियों को और औरतों को हमारे साथ भेज दो, हम तुम्हें अभी जलाएंगे। क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने टिकला टेपलू को भी हमारे दरवाजे के पास ही मारा था, बिल्कुल आमने सामने से ही उसको मारा था। फिर हम भी हम तब तक तो वो 26 जनवरी की बात ही नहीं थी, हम तो दिसंबर से ही वहां से भागे थे। आप दिसंबर 1998 में, 1989 में, हम 89 से वहां से भाग, क्योंकि उन्होंने स्कूटर जलाए और बोला जो लड़कियां हैं, 4-5 लड़कियां थी हमारे घर में, बोला हम सब हवा के दिल में रहते थे, बोला इन लड़कियों को और औरतों को दे दो तो हम इनको अपने साथ ले जाएंगे। फिर हम रातों रात पैदल गए उम्रा कदल तक। तो वहां से उम्रा कदल तक बर्फ इतनी गिरी थी, तो बर्फ में ही हम भाग के निकले थे। तो बच्चों को किताबों के बैग वो पीछे से रख के गए हैं। तो फिर बसों में हम भाग के आए जम्मू, हमें पता ही नहीं हम जम्मू पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे, हमने पहली बार देखा था जम्मू कहाँ पहुंच गए हम। तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था उस टाइम, क्योंकि हमने सोचा ये लड़कियां बच जाएंगी तो इज्जत बस, बाकी तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने घर से एक चम्मच भी नहीं लाया था। कहाँ अभी आपका घर है? आप कभी गए वापस उसके बाद? वहाँ गए हम, पिछले साल गए हैं। अब वहाँ घर नहीं गए, वहाँ वो तो उन्होंने लिया है, मुसलमानों ने लिया है, वो उन्होंने मकान डाला उधर अपना। और आपका सब कुछ? हाँ जी, सब चला गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। मैं इनसे भी जरा पूछता हूँ, आई कम टू यू ऑल्सो। आपका शुभ नाम? आपको मैंने शायद पिक्चर में भी देखा है। आपको देखा है? हिंदी में नहीं आती, कश्मीरी बोलो, कश्मीरी में बोलिए। बट आज चलो जोलो के मकान वकान सोलो के पोस्ट बस मोदक मारो सोरे बाट कोर के पोस्ट आज मिलटन दोपक मस मारो कि बच सोरे मारो। तो आज पत चलत और अग बज आज चलत ओन तोर कहें यम शुर वन खन मज आय और चलत न कह सामान कह चीज न कहें इथे पोस्ट आज चलत पता कह गो जोलक तप मकान शकान सोरे जोलक तप बस ये पता। तो रात को 1 बजे निकली थी ये, और इनका मकान भी जला दिया गया, और वही थ्रेट्स आई रात को, रातों रात ही लोग निकले और सब बच्चों को साथ में लेके अपनी जान बचा के, और अब तो कह रही कि सब जला गया है, सब इनका मकान वगैरह। आप कहाँ पे रहती थी? कुपवाड़ा। और वाचिंग मूवी एस्केप टू सोबीबार, कुछ फिल्म चल रही थी, कंसंट्रेशन कैंप्स वहां जर्मनी के कुछ चल रही थी, तो बाहर डेफनिंग साउंड, देयर वाज डेफनिंग साउंड। तो जब आपने देखा, व्हेन वी रियलाइज्ड कि क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी हसन नाम था उसका, ही वाज सो स्केयर्ड, इवन ही वाज स्केयर्ड। उसने कहा मेरी बेटियां 2 है, अपने घर में रखो इसको। इवन दे वर सो मच स्केयर्ड। इतना हाल बुरा था कि हमने, मेरे कजिन ने कहा कि गैस सिलेंडर हमने रखे सामने, इफ वी आर अटैक्ड लेट अस डाई ग्रेसफुली। दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर द फैक्ट्स व्हिच वी कैन नेवर फॉरगेट। हमने सिलेंडर सामने रखे। आप कितने साल के होंगे तब? सर आई वॉज वर्किंग इन MTNL, BSNL में काम करता था। आई वॉज अराउंड 32 years old. 32 years old. I have retired now. I am a senior citizen now. Finally, I never thought that I had to leave that place. But they were killing us mercilessly. One day I was coming from my office. My friend Naveen Sapru was with me. उसने कहा मेरे यार अपने कुछ कपड़े लाने हैं वहां से, तो मैं आ रहा हूँ। मेरा पड़ोसी था, and he was killed, shot dead. Even his dead body was not handed over to his families.
वो फिर आर्मी वालों ने ही जलाई. These are the facts which we can never forget. And I don't blame, let me tell you one thing categorically, I don't blame the people. I blame the government of the day. I blame the system. I blame the policies of the government. वहां क्या हुआ everybody knows. We know it. But मैं आपको यहाँ की घटना बताता हूँ. What happened with me here? What I faced here? मैं सोच रहा, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें चांस दिया यहाँ पर. जब मैं रिटायर होने वाला था, मेरा अपना घर नहीं था. किसी कारणवश माई डॉटर वॉज वेरी इल, आई कुड नॉट हैव माई ओन हाउस. मैंने एक रिक्वेस्ट दिया था कि गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता हूँ, आई शुड बी अलाउड टू स्टे फॉर सम टाइम, जब तक मेरा अपना कुछ हो, मेरी पेंशन भी कम है. दे रिजेक्टेड माई केस. आई हैव गिवन 42 years of service in my department. Worked sincerely to the best of my capability. My case was rejected. I sent it to PMO office. PMO office ने मेरे ऑफिस भेजा MTNL में. It was rejected. मैं कोर्ट में गया, कैट में गया. See, the कैट में जज ने क्या कहा? My plea was accepted, but then dismissed. जज ने कहा that judgment is with me. You are lying. I tell you on records here. You are lying. There was no threat to you people. आप अपने आप चले गए हो. I dismiss your appeal. And they slapped 5 lakh rupees penalty for overstaying in the court. मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा? I had just 17,000 rupees pension. My grown-up daughter. I was given 24 hours notice. मैं निकला, मैंने ट्रक की 2 दिन मैंने सामान रखा उस ट्रक में. I paid him 75,000 rupees and my cousin Dirish, he paid that money. And even today I am, मुझे कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं कुछ रेंट देने में, मुझे कोई शर्म नहीं है. सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे अपने ही देश में. आई विश आई वाज किल्ड बाय दोज मिलिटेंट्स. मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कहते हैं ना कि आप खुद छोड़ के गए, आपको किसी ने जाने को नहीं कहा, ये जो दलील है ना, जब भी मैं पंडितों की बात उठाता हूं, डिबेट्स में उठाता हूं, तो लोग ये कहते हैं. आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से चले गए, आपको किसी ने नहीं जाने को कहा था? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. क्या बात है, मैं इंतजार करूं. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको मैं सारा भाई ये पेन जेब से निकालूं, आप मेरे को निकालना दोगे क्या? दोगे क्या? ये छोटा सा पेन एक है 10 रुपए का, और हमारे इतना लाखों करोड़ों रुपया बाग बगीचे, जो वो लोग हमारे पास काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, हम उनको पालन पोषण करते थे, हमारे घर बनाते थे, और उन्होंने वही हमारे घर बार जला दिए. तो ये क्या हो सकता? क्या हम खुद भागेंगे वहां से या भगा दिए? वहां लोगों ने ऐसे भगा के, कैसे भगा दिया, किस तरीके से भगा, यार दोस्तों से कैसे, किस तरीके से, दाड़े से, किस तरीके से वहां पर लोगों को भगा दिए. हम लोगों को आराम से आस्ते आस्ते करके यहाँ पर निकल जाओ. फिर यहाँ जम्मू में आ गए. यहाँ कैसे बैठे? टेंट में बैठे. यहाँ गीता भवन में वो हीरालाल चत्ता साहब थे. हम वहाँ पर उस टाइम कैसे कैसे खिचड़ी बनाते थे, पानी लेके उनको देते थे, ऐसे चाय पिलाते थे. पूरा ऐसे गीता भवन में उनको, वहाँ पर जितने कश्मीरी आते थे वहाँ पर बिठाते थे उनको. फिर वहाँ पर जगह नहीं मिली, वहां से उनको फिर टेंटू में कर दिया. टेंटू में ऐसे फिर ऐसे करते जब तक एक वाटर में आ गया जगटी, कहीं चिड़िकान है, कहीं ऐसे करते आज तक इस जगह पर पहुंचे. आप बताओ, भी हमारे बच्चे हैं, कैसे आज भी हमें रोना आता है. वो हम लोग अभी भी बोल रहे हैं तुम्हारे पास क्या है? कौन से अपने आप को तुम लोग कश्मीरी कहते है? किस चीज के तुम मूली हो? क्या बताएंगे? एक कमरे हम बैठे हैं, क्या बताएंगे? हम बड़े आदमी थे, हम बड़े सेठ थे, हमारे पास अखरोट है, हमारे पास बादाम है, हमारे पास सेब है. क्या बताएंगे उनको? हम कुछ नहीं बोल पाते, उनको कुछ भी नहीं बोल पाते. हम उनको पढ़ा नहीं सकते. हम हमारे फटे वाले कपड़े क्या पहनेंगे? कहां से लाएंगे? कौन देगा? ये चोपड़ा साहब की मेहरबानी है, यहाँ पर आप आए.
इनकी लागत पर, इनकी बदौलत पर, नहीं तो हमारी हिम्मत नहीं जम्मू से यहाँ तक आने के। कौन 10 रुपए खर्च करेगा हमारे लिए? रोना ही आ जाता और क्या है। मेरी अपनी भी कहानी है। अब ये अलग बात है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरी किस्मत। मैं कुछ तस्वीरें आपकी जो हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं। दिखाइए। वो जो स्टिल्स हैं, कैन वी जस्ट हैव अ लुक एट देम प्लीज? दीज आर सम पिक्चर्स। दैट्स माय फादर। ओह माय, दैट्स मी, ही इज होल्डिंग मी। क्या मैगी खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? ये आपके? ये वो मैं छोटा सा मैं हूं, वो छोटा, ये द लिटिल बॉय, ये तो बिल्कुल छोटा। ये मेरा घर है, घर था असल में। ये मेरे सब भाई हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मैं हूँ। हाँ, ये जब मैं फिल्मों में एक्टर बनने के चक्कर में था। हाँ। वो मेरे पिताजी की पहली गाड़ी थी। तो ये आपका मेरी माँ है। ये आपका बचपन, ये कौन सा? ये मेरा घर है 35 वजीर बाग। मैं वहीं पैदा हुआ, वजीर बाग में, 35 वजीर बाग। अब मैंने काफी जमीन ली है उसका, लोनावला में 15-20 एकड़, वो उसका नाम मैंने वजीर बाग रखा। वजीर बाग रखा है। पर वो जो कश्मीर का घर, वो तो अब है नहीं, ये टूट गया। अब यहाँ कुछ और ही हो गया। अब बस ये यादाश्त ही रह गई सर। तो आप कितने साल के थे जब लास्ट आप कश्मीर में थे? मैं सारी जिंदगी कश्मीर में रहा यार। मैं पैदा कश्मीर में हुआ, वहाँ डीएवी स्कूल में पढ़ा मीरा कदल में, उसके बाद एसपी कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया एमए करने, फिर वहां से फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिली। तो मैं 17-18 साल का था जब मैं मुंबई पहली बार आया। तो वहां से फिर मैं एमए करता हुआ छोड़ के फिल्म इंस्टीट्यूट गया। ये 89-90 उस टाइम जब आप परिंदा बना रहे थे ना? जी, उसी वक्त तो मेरी माँ आई थी ना। परिंदा के प्रीमियर पे तो माँ आई थी, फिर जान सकी, शी कुडंट गो बैक। तो ये जितनी कहानियां हैं, ये सब ऐसा नहीं लगता कि कहानियां हैं, ये सब हमारी सबकी सच्चाई है। कोई एक किस्सा, आई एम श्योर यू आल्सो हैड अ नाइस सर्कल ऑफ दोस्त थे। तो उनमें से कोई दोस्त थे जो बिछड़ गए, जो अलग हो गए, जिनका रवैया बदल गया, रातों रात रवैया बदल गया, या जिन्होंने आपसे कहा कि आप भी चले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आपने मेरी फिल्म भी देखी, आपने देखा कि मसूद साहब जो हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल बन गया, जैसा भाई साहब ने कहा वहां, कि वो माहौल में मेरे 2 दोस्त थे। एक गुलाम मोहम्मद था, मोहम्मद अमीन था, अभी भी मैं उनके मिलता हूं। मेरे अवतार भट्ट था जिसको भागना, मतलब बहुत सारे दोस्त थे, हर कम्युनिटी के दोस्त थे। उस वक्त ऐसा था कि हमको ये समझ में नहीं था कि ये अलग हैं, हम अलग हैं, ये अलग हैं। हमको लगता था हम सब कश्मीरी हैं। हाँ, हम खीर भवानी जाते थे, हम सब वो डोंगे में जाते थे। तो जब कश्मीर भवानी हम जाते थे 7 दिन लगते थे। पर खीर भवानी जाने के वक्त रास्ते में मेरी माँ हमेशा वो डोंगा रुकता था। डोंगा इज ए हाउस बोट, और हम हजरत बल में माथा टेकते थे और फिर खीर भवानी जाते थे। हमको बचपन में लगता था यही है, इन सबको यही लगता होगा। लगता, बताइए कभी हमको ये लगा कि यार ये अलग है और वो अलग है? नहीं। अगर मैं बता दूं सच्चाई, तो हमें उस वक्त के मीडिया से भी गिला है, जिन्होंने हमारी व्यथा कथा को पूरे हिंदुस्तान तक, जो सिविल सोसाइटी है हमारे भारत की, उन तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने भी उसको पक्षपात करके दिखाया। दूसरी बात जो आपने बताई कि वो लोग बोलते हैं आप खुद निकल गए। हमारे लिए कौन से बंगले यहां तैयार थे? टेंट में, मकान छोड़कर मैं टेंट में आ जाता अपने बच्चे लेकर। मैं रिसेंटली मैरिड था, 89 में मेरी शादी हुई थी, तो फरवरी 90 में भाग कर आ गया। माय मिसेज वाज प्रेग्नेंट, तो मुझे टेंट में रहना पड़ा। तो क्या उसलिए मैं भाग के आ जाता अपना घर बार छोड़ के? सर्कमस्टेंसेस वेर क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी मिलिटेंट्स। स्ट्रेट वे बोलना चाहिए। हमारे हमसाया लोग आज भी हमसे प्यार करते हैं, तब भी प्यार करते थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट की गई कि वो भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझ पाए। तो चूंकि वो मेजॉरिटी में थे, बिकॉज ऑफ दैट वो मतलब डेयर कर सके वहां रहना, हम नहीं कर सके। इस वजह से हमें वहां से भागना पड़ा। मेरे पिता की लास्ट ख्वाहिश थी 88 मतलब 18 दिसंबर 2018 में उनके वो स्वर्गवास हो गए। उनकी लास्ट चाहत थी कि मेरा जो दाह संस्कार हो वो मेरे I could not finish. Last wish. आज मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप पुरखों की मतलब जहां चिता थी वहां हो जाए, लेकिन विश वो तो उसीलिए मैं भाग के आया था। मैं उसलिए नहीं भाग के आया था। इन्होंने कहा कि हमारी जबान गई। मैं सोचता हूं आज जब हम घर से निकले, हम 24
संगठित परिवार के सदस्य थे। एक किचन में जैसे लंगर लगता था। हम 5 भाई थे, एक बहन थी, 5 मैरिड थे, उनके बच्चे थे, माता पिता थी। तो मतलब 24 सदस्यों को हमें एक साथ घर से निकलना पड़ा, लेकिन पूरे 30 साल आज तक हम कभी 24 सदस्य शिवरात्रि इकट्ठे नहीं मना सके। शायद अगर उस वक्त ये उछाला जाता, विदु जी को आज फिल्म में ये लिखने को मौका नहीं मिलता कि 30 साल बाद अभी भी मेरी व्यथा और कथा सुनाई जाएगी। और हम इनका थैंक्स भी करते हैं कि कम से कम एक सदस्य ऐसा इस समाज में निकला, इस भारतवर्ष में निकला कि जो हमारी व्यथा कथा 30 साल के बाद मतलब पूरे विश्व के सामने पहुंचा सकेगा। 19 जनवरी 1990 मैं उस टाइम 20 साल का था। मैं जवाहर नगर में रहता था, श्रीनगर में। मैं अपने घर में टीवी, मेरे घर में एक कजन आया था अनंतनाग से। हम पिक्चर देख रहे थे, बहुत मजे में थे, अच्छा खाना शाना भी बनाया था। तो रात के 11 बजे का टाइम था। तो आवाजें आ गई, इतनी जोर से आवाजें। हमने बोला पता नहीं कुछ होगा, हो सकता है 26 जनवरी आने वाला है कुछ, या ऐसा कुछ है। तो बाहर देखा, कोई लाखों करोड़ों के तादाद में सारे लोग घरों से बाहर आए हैं कि भाई यहां पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान बन चुका है। कश्मीरी पंडित जो है, या यहां बैठो या हमारे साथ मिक्स हो जाओ या मर जाओ। दैट वेर द स्लोगन्स इज दैट टाइम कि वी विल मेक हियर पाकिस्तान विदाउट कश्मीरी पंडित्स बट विद देयर लेडीज, वुमेन्स। तो ये एक स्लोगन था वहां, जिस वजह से लोगों को 12-12 दिन, 13-13 दिन, मुझे याद है 19 जब ये हुआ तो हम 3-4 घर साथ साथ रहते थे। बाकी सराउंडिंग्स में हमारे मुसलमान भाई रहते थे। तो जो हमारे पास राशन देने वाले आते थे उनको मारा गया कि इनको राशन मत दे दो, दूध मत दे दो, इनको बंद करो। मस्जिदों में सामान दिया जाता था उस टाइम। तो क्या हुआ, हम 12 दिन 4 घर एक ही जगह बैठे, इसी तलाश में कि हम कब भागे, कैसे किसको, फिर कैसे कैसे किसको व्यवस्था हुई, किसको कब अरेंजमेंट हुआ। किसी के पास उस टाइम पैसा नहीं था, सर्दियों के दिन थे, बर्फ पड़ी थी, किसी के पास पैसा नहीं था। किसने बेचारे ने कैसे अरेंज किया, कैसे टैक्सी की जम्मू पहुंचा, कैसे ने बस की, कैसे पहुंचा। ऊपर से कर्फ्यू लगे थे। हम ट्रकें तो की नहीं किसी ने उस टाइम, तो ऐसे ही छोटी छोटी गाड़ियों में चले आए। और 4-4, 5-5 दिन हमने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारे को दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला आता था वो खत्म हो गया। फिर भी अभी हम ये भी बोलेंगे, क्योंकि कुछ मुसलमान भाई हमारे उसमें ऐसे भी थे जिन्होंने मस्जिदों से हमको घर लाके सामान दिया, क्योंकि ये बात हम जरूरी कहना चाहते हैं। कुछ मुसलमान भाई ऐसे भी थे हमारे जिन्होंने मस्जिदों से सामान उठा के दिया कि आपके घर में है कुछ कि नहीं। मेरी उस टाइम 2 बहनें थी। हम बोलते हैं कि भाग कर क्यों आए। मेरे पास अभी भी JKLF का लेटर है। मेरे डैडी को उन्होंने लेटर दिया कि आपके घर में 2 बेटियां हैं, उन दोनों को हम धर्म परिवर्तन कराएंगे उनको और आपको मार देंगे। लेटर्स वो हमने जम्मू में भी दिखाए थे जब हम माइग्रेट होकर आए थे। तो थ्रेटनिंग जो है एक एक घर को दी गई थी, एक एक बंदे को दी गई थी थ्रेटनिंग। ऐसे ऐसे डराया गया था कि लोग मजबूर हो गए कि भैया अपनी इज्जत बचाओ, जान जाए, पैसा जाए, सब कुछ जाए, लेकिन इज्जत बचाओ। हमारी 2 बहनें उस टाइम जवान थी, अनमैरिड थी। जम्मू आके डैडी ने उनकी पहले शादी। तो एक बात मुझे बताइए राहुल, आप भी बताइएगा प्लीज टेल मी। आप 14 साल के थे, आप 20 साल के थे, कोई किसी ने कहा कि आप 32 साल के थे। सो आपके जो आसपास जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो यार दोस्त हैं, उनमें से किसी ने आपको संकेत नहीं दिया कि ये गड़बड़ होने वाली है, सर मैं आपको निकल जाना चाहिए? बिल्कुल मैं बताता हूं। मेरे साथ मेरे साथ मेरा दोस्त एक था, वो खुद मिलिटेंट बना। 86 की बात मैं बताऊंगा सर। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो क्लास फेलो था मेरा। उसने मेरे से फोटो ले लिए, स्कूल के फोटोज। मैंने बोलता यार मुझे स्कूल के फोटो चाहिए तेरे। मैंने बोला क्यों, स्कूल के फोटो क्या करने? बोलता मेरे पास मतलब खराब हो गए हैं, तू मुझे दे दे। मैंने उसको अपने 5th की, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, मैं DAV जवाहर नगर में पढ़ता था। तो मैंने उसको फोटो दे दिए, उसने वापस नहीं दिए। मैंने बोला तूने वापस क्यों नहीं दिए? बोलता यार मेरे से कर। और 86 में वो चला गया कहीं। उसकी माँ मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। उसके डैडी का नाम गुलाम नबी था, वो ट्रीट करता था। मैं उसके घर गया 5-6 बार। मैंने बोला वो कहाँ है? उसको हम प्यार से बेटा बोलते थे। और वो कहाँ है? बोलते वो दिल्ली गया बिजनेस करने के लिए। मैंने बोला वो बड़ा अजीब दोस्त है,
अगर वो दिल्ली बिजनेस करने के लिए गया तो उसने मेरे को क्यों नहीं बोला? हम तो इकट्ठे जीते मरते हैं, उसने क्यों नहीं बोला मेरे को? तो बोला नहीं, जब आएगा खुद ही पूछ लेना। 3-4 महीने हो गए, वो आया। जब वो आया, रियल बात है, मैंने उसको थप्पड़ मारा। मैंने बोला तू दिल्ली गया था, तूने मेरे को क्यों नहीं बोला? तो बोलता नहीं, मैं जब अगली बार जाऊंगा तेरे को बोलूंगा। लेकिन वो पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग करने के लिए। वो पाकिस्तान ट्रेनिंग, उसने मुझे नहीं बताया। पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया, तब भी मुझे पता नहीं चला कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया। राहुल, आपने भी इस पे काफी रिसर्च किया, तो आप आई वांट यू टू टॉक, आई वांट यू टू शेयर कि See, the situation had started to change very gradually from mid-80s onwards. A lot of people from this audience are from South Kashmir. Anantnag in South Kashmir faced one of the worst communal riots in 1986. I mean, these guys will tell you their stories. But from 87, 88 onwards, we had started getting subtle hints of the fact that something is amiss. We would go with my family to Shankaracharya Hills, for example, or to the bypass road, you know, on a deserted road. And you would see these youngsters in their 20s and late 20s, early, 19, 20-year-old, doing some sort of physical drill all the time. And you would think, what are they up to? And maybe they are learning some karate, or they are into some athletics, etc. At the same time, the kind of people, among the majority community, people would come, we would have these interactions. For example, a milkman would come and he would say, you are building a new room in, on your 3rd floor. You're just wasting your money, because sooner or later this house will belong to us. And we would take, and I have spoken to a lot of Kashmiri Pandits about this. That is the exact line. Thinking that perhaps this is my personal experience. I've spoken to scores of Kashmiri Pandits. Almost 95% of them have had similar experiences. Sometimes, the character changes. Sometimes the milkman will tell you this, sometimes your colleague will tell you this, sometimes the shawl wala will tell you this. But, you started getting subtle hints from 88, 89 onwards that something is 85. ये जो कल्चर था ना कश्मीर में कि आप लोगों के बहुत सुंदर पहनावा है, एक तरीका है, तौर है, हाँ कान में डालते हैं और फिर पहले लंबे वाले डालते थे, फिर बिंदी और फिर ड्रेस जो पहनावा था। कहीं आपको कहा गया था कि आप ये सब मत पहनिए? कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जब आपको बोला आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? चैन स्नेचर्स आर देयर। हाँ, इसी के डर से ये छोटा नहीं मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जब आप छोटे थे, when you were young, none has told us, none. हाँ, नहीं अब माइक आपको ऐसे मैं पकड़ता हूँ आपके लिए। हाँ जी। नहीं सर नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए। नहीं सर, I have to say pre-90. You have to, yeah. I have to say pre-90. Yeah. Pre-90 is the base of our exodus. In 89, Jahaji started selected killings on the basis of Pakistan-sponsored terrorism. First episode which took place in first killing was our Tikala Diplo. He was a renowned lawyer of our state. He was killed in broad daylight on the road. He was then General Secretary of the Jan Sangh, now BJP. Jahadis did not stop there. They continued there. Who was encouraging them? How did they get? Pakistan-sponsored terrorism, I should say, sir. But they were getting. It was the Pakistan behind it. But Pakistan was behind it. But वहाँ उनको ground में support, because people were gone there, they took training there and came back to Bailey. They started this training right from 86, perhaps, and 89 they started killings. Then they killed more than 1,200 people, innocent Kashmiri people. Among them were judges, lawyers, IS officers, poets, as well as vice chancellor of a reputed university. They didn't stop there even. They started slogans. We want Pakistan, including Kashmiri women, excluding Kashmiri Pandit. We want Azadi, including Kashmiri women, excluding Kashmiri Pandit. जो 19 का ये जनवरी था, वो रात के वक्त तमाम वो मुस्लिम मेजॉरिटी, कम से कम 10,000 थे, वो हमारे गांव में घेरे में आ गए
उन्होंने कहा, स्लोगन था, यही था नारा, हम बनाएंगे पाकिस्तान बटुओं के बगैर, वे यानी मर्दों के बगैर, औरतों के साथ। ये स्लोगन था। और जनरली जो कश्मीरी पंडित हैं वो बात बात में निकालते हैं एकदम कि उनका आइडिया क्या है। ये आइडिया सबों के दिल में बैठ गया कि औरतों और लड़कियों का खतरा है। इस खतरे को जानकर उन्होंने सब त्याग किया, जमीन जायदाद सब कुछ, कहा क्या अपना इज्जत बचाए। इस इज्जत बचाने के लिए हम भागने को मजबूर हो गए। हमें किसी का ये न बताएंगे कि चलो, क्योंकि उन तमाम लोगों का यही ख्याल था कि ये करना है। और हम मुश्किलन उस दिन हम बच गए। उनमें से भी कोई मुसलमान अच्छा था, एक था वो हाजी था। उसने कहा, देखो ये 20 है, इन 20 को हम आधे घंटे में खत्म कर सकते, इस वक्त इनके साथ छेड़ो मत, जब सब कश्मीर खत्म हो जाएगा हम इनको हटाएंगे, आप इनके साथ जरा मत कर लो। वो बहुत अच्छा था, हाजी था और औकाफ का प्रेसिडेंट था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो तो मुश्किल है। तो उसने हमें बचाया। Through this movie, what is it that you're trying to convey? A, there is a story. What is the emotion? Do they want to go back? Do they want to go back where they want to be? Do they think they can go back? Or do they want their respect restored? They want their identity of Kashmiris being restored. What do you think is the underlying emotion? See, or do they want justice for what was done to them? See, I think everything. They want their story. They want the country and the people who have not even responded to them actually to say sorry to them. That's what I would appreciate. That's the least we can do 30 years down the line, that we turn around and say we are sorry. What else can we say? You tell me. What else can we tell them? It's taken me 11 years, you know how tough it's been. I mean, even now I'm holding back my emotions because I'm on TV, I don't want to weep. But you know, the fact is it kills you. This Daisy has been, you know, she was with me. आप देखो इन्होंने वो जो शूट में किया है, जब ये शूट कर रही हैं और कह रही हैं कि अच्छा बल में हमारा घर था, किसको अच्छा लगता है, वो रोने लगी, आगे बोल नहीं सकी। एक गाय का सीन है, मैं अपनी फिल्म में बता रहा हूँ, वो रो रही थी ऐसा उसको पकड़ के वहां पत्नी टॉप में, मेरे लिए नहीं रो रही थी। एक महिला थी, वो अभी यहाँ है नहीं, मैं पहचानता हूं उनको। मैंने जब वो ये दोनों थे और एक महिला थी, जब मैंने शूट किया रजिस्ट्रेशन का सीन, तो मैंने एक टेक लिया, उसके बाद मैंने कहा 1 मोर, तो वो आई मेरे पास, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि जब एक और है, कहती नहीं अब तीसरी बार नहीं होगा। मैंने कहा क्यों तीसरी बार? ये जो तस्वीरें हैं, इसके बाद ये जो भीड़ है, ये सीन में वो इस तरफ लेफ्ट में है, सब पर्चे लेके खड़े थे। सर, हम ये कहना चाहते हैं, राम जी का वनवास तो 14 साल हुआ है, लेकिन हमें और कितने साल देखना पड़ेंगे? हम रिफ्यूजी नहीं है। हम बोलते हैं ना ये रिफ्यूजी है, हम रिफ्यूजी नहीं है, ये माइग्रेंट, हम माइग्रेंट नहीं है, हम अपने स्टेट में माइग्रेंट हो गए हैं, हम दूसरों की स्टेट में नहीं, लेकिन हम माइग्रेंट नहीं है। हम अपने ही घर में रहते हैं, हम रिफ्यूजी नहीं है। You know, the official count of killings of Kashmiri Pandits, Kashmiri Hindus in Kashmir is 700, but I would say it is about 10,000. Because in the first few years of exile, so many people died of sunstroke, snake bites, scorpion bites, the lady was saying. Yeah, that lady. They died of depression, they died of diseases unknown to us. So 10,000 people. Now from this film, you know, we just want the world, you know, there's a message in the trailer where the refugees are saying कि जब हम निकले हैं तो पार्लियामेंट में बहुत शोर मचेगा। Yes, I was about to पार्लियामेंट में शोर कभी मचा नहीं। हम 30 साल इंतजार करते रहे। कुछ लोगों ने अब मचना चाहिए, अब मचना नहीं, अब मचना चाहिए शोर, आपकी वजह से बचेगा, आपकी वजह से बचेगा, आपकी वजह से। हमारा ये 2-3 प्रयास है कि एक तो शोर मचना चाहिए, एक एक्नॉलेजमेंट हो हमारे दर्द का कि 30 साल हम किस दर्द से गुजरे। एक्नॉलेजमेंट सबसे पहले, हमें कोई जस्टिस तो बहुत बाद में, पहले एक्नॉलेज तो करो कि ये आपके साथ हादसा हुआ है। और किसी ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, लीडर्स ने,
जर्नलिस्ट ने, सिविल राइट लिबर्टीज वाला ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, दे फेल्ड अस. So there has to be this acknowledgement. विदु जी, थैंक यू सो मच. मैं बंसीलाल मट्टू की डॉटर हूँ, संगीता. नमस्ते सर. मैं इनको हमारी फिल्म में उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो अब नहीं है. और वो पूरी फिल्म में मुझे कहते रहे कि मेरे पास समय कम है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनको कैंसर है. उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया. वो खाना नहीं खाते थे. मैं उनसे कहता था बंसीलाल जी खाना खाते. नहीं, मेरा पेट खराब है. पर उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा वो जो आप फिल्म देखते जो कहता है चिल्ला के वापस जाना है, वो बंसीलाल. अरे वो रह गए मेरे साथ. हाँ, अब मैं नहीं भुला पाया उनको. इस फिल्म से he was haunting me last evening. No, he was haunting me when that thing that madness कि मुझे वापस मेरे कश्मीर जाना है. और मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मेरी दीदी. खड़े हो जाइए आप. मैं ये जो है ये बंसीलाल जी इस फिल्म में मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमर हो गए. हम नहीं रहेंगे, ये फिल्म रहेगी और बंसीलाल जी रहेंगे. बिल्कुल याद, बिल्कुल सही कर रहे हैं. मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, जब मेरे फादर थिएटर से, रेडियो, टेलीविजन से बहुत सालों से कनेक्टेड थे, शुरू से. उनको सभी लोग जानते हैं कश्मीर में. आप बैठिए प्लीज. नहीं, हम ओके. तो जैसे इन्होंने बोला कि वो हिट लिस्ट बनाया गया था जिनमें मेरे फादर का नाम रैनावारी में रहते थे, विच वॉज नोन एज इस्लामाबाद. जब मिल्टन सी पीक पे थी, हिज नेम वॉज ऑन टॉप लिस्ट. तो हम लोग, मेरी मम्मा, एक बार क्या हुआ था मस्जिदों में, उन्होंने ना वो रूमर फैला दिया था कि पानी में जहर है, पानी में जहर है. तो पूरा कश्मीर, जो हमारा पूरा रैनावारी था, हाई अलर्ट पे था. और हम लोग ऐसे मतलब कोनों में छुपे हुए थे. मेरी मम्मा हमको अलमारियों में डाल रही थी, क्योंकि हम 3 डॉटर्स हैं हमारे घर में और भैया है मेरे. तो उस दिन हम कैसे वो रात निकालिए, जो हम तो मक्खी नहीं मारते हैं. मेरी दीदी कहाँ से चाकू निकाल के लाई थी कि कुछ भी करना पड़े, दूसरे को ना मारे तो कम से कम खुद को तो मार दे, कम से कम इतनी इज्जत तो बचा ले उस टाइम पे. एंड आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड एंड शी वाज इन 8th स्टैंडर्ड. तो वी हैड सीन द मोस्ट द डिफिकल्ट टाइम्स वी कुड एवर सी. आई डोंट थिंक एनी चाइल्ड शुड सी. दिस इज माई सन. मैं इसको 3 साल पहले कश्मीर लेके गई. आई रिमेम्बर व्हेन आई लेफ्ट कश्मीर, आई वाज वेयरिंग येलो शर्ट एंड दिस ब्राउन शॉर्ट्स एंड आई वाज होल्डिंग हैंड ऑफ माय ब्रदर. एक साइड से मैं थी, एक साइड से दीदी थी. एंड व्हेन आई केम बैक 3-4 years बैक, इट वॉज नॉट इंटेंशनली, बट जब मैं सेम उस गली से चल रही थी एंड आई वॉज होल्डिंग माई सन्स हैंड एंड he was wearing same color combination and I was so surprised that history is repeating. I said, Anshi, मैंने कहा आपको तो पता नहीं, but I was wearing the same color combination when I left and I thought that I'll be back after 1 month. Vidhu Vinod Chopra, I have to congratulate you. Big round of applause for him because he's taking our story. He's taking our story to a screen where people will sit and watch and then they will know what they have forgotten. He's taking our piece of history, our piece of truth, and he's turned it into बिल्कुल आपकी जो सच्चाई है उसको एक कहानी के माध्यम से वो दुनिया को, देश को दिखा रहे हैं. That's why I hats off to you and I'll tell you that movie is haunting me. I have to wind up. Big round of applause to everybody and let's hope ये 30 साल अगली बार जो है ना, हम 40 पे नहीं मिलेंगे, ऐसे वहां मिलेंगे जहां आपका घर है, वहां मिलेंगे. ये सीरियसली हमारे कश्मीर में. But as we wind up, I just want to show something very special with Mr. Chopra's kind permission. He said that it was his mother, through his mother's eyes, that he's made this movie. Now, just look at this, a very, very candid moment when your mom went back, went back under. Yeah. So we'll wind up with that and also a quick sneak peek into Shikara. Thank you very much. आज मेरे को इतने सालों के बाद बहुत अजीब लगता है. बॉम्बे सेटल है पर फिर भी वो अपनी जगह नहीं लगती जैसे कि अपना ये श्रीनगर लगता है. बस यहाँ की याद ही याद है और तो कुछ नहीं. इसकी मेरी दोस्ती को तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम. हम पहलगाम में मिले थे, कम से कम कुछ 40-45 साल हो गए हैं इसको मेरे साथ प्यार मोहब्बत मिले हुए. इसी ने मेरे को फोन किया था बॉम्बे रोते रोते, बहन जी आपका घर लूट ले गई उग्रवादी. और मैं इसलिए ज्यादा दुख है मेरे को कि आपके ठाकर जी ले गए हैं वो CRP वाले.
अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं घर जाऊँ और मेरे को सहन शक्ति मिले कि मैं बस देख के कहूँ हाँ ठीक है जो हुआ अच्छा हो गया। ये भी पता बड़ी बात है, अगर मैं ये कहूंगी तो अच्छा ही है ना, आप ले गए तो ले गए, लूट के ले गए, अलमारियां गाड़ दे क्या तोड़ के ले गए। सिर्फ एक बात बड़ी है कि आग नहीं लगाई, जलाया नहीं, घर छोड़ के। जिस बात के लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए फिर इंसान को खुशी रहना चाहिए।